It's project organization. It's your fourth unit, right? So tell me about project organization. When the word comes, or read that kind of word, the project organization, what thought comes in your mind? Tell me please, what is project organization? What kind of ideas or thought comes in your mind when we talking about the project management? Yes, Chaitanya, Jayashri, we have seen 3 units. We have seen lots of formats, how we prepare project, what kind of report we have to prepare, how to handle project, how to accept project, how to read project, how to evaluate project, everything we have seen. So now we have seen the project organization. When the word comes in your mind or you read this word, so what thought comes in your mind? Yes, actually. The project organization is the structure of Yes. project. Yes. Project Chaitanya. organization. Okay, very good. Yes. Chaitanya. Okay. So, project organization, it means how to organize project. When you get a project, the thought comes in your mind how you evaluate. It's take it or not, it start or not, what is the cost of project. Okay, then you plan, pre-plan, and then you organize how to make it perfect. And especially important thing is that to finish project on time. Got it? So organize to form into an association for a common purpose or arrange systematically, right? For example, हमारे यहाँ पे कोई इवेंट होता है ना, एंड इफ जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी इवेंट, जैसे द इवेंट कम्स ऑन वीमेंस डे और हमने बोल दिया कि भाई आपको ऑर्गेनाइज करना है, then what you do, you just gather the people, the students, and you just make a list of what kind of programs we have to conduct it, right? Who is come, what kind of events you have to doing, right? And then you organize on that particular day, right? It's your project, but it's a small project, 1 day project. But in organization, our big project, 1 year, 2 year, 5 year, short term project, long term projects. Okay, it's a big cost project, right? And the purpose, what is the purpose of any kind of project? The purpose is to finish on time with systematic, with perfection of work, right? So that is project organization, means organize very well, right? Organize systematically, right? So organize to inform, or sorry, organize to form और टू सेटअप और टू मेक. जैसे हमें अगर घर लेना है तो हम लोग कितने सारे ड्रीम्स देखते हैं ना कि घर में ये सारी चीजें होना चाहिए, हमारा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए, हॉल ऐसा होना चाहिए, बालकनी ऐसी होनी चाहिए. सो द आइडियाज कम्स इन आवर माइंड, राइट? एंड देन वी जस्ट मेक अ डिजाइन. बट बिफोर प्रिपेयर डिजाइन, we just plan, we just thought in our mind कि नहीं ऐसा होना चाहिए. अगर हम जैसे टीवीज में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, तो कितना अच्छा सिस्टमैटिक, तो जस्ट फील, द फील कम्स इन आवर हार्ट एंड इन आवर माइंड कि यस हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, राइट? सो प्रोजेक्ट का भी फीलिंग वैसा ही होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट के साथ, नो मिसमैच, एकदम कंप्लीट, राइट? तो प्रोजेक्ट भी हमें वैसे ही ऑर्गेनाइज करना है. नाउ लेट्स, so project organization means the specialization of one elements, because all thing is made by man, right? So all
बिकॉज आदमी ही ज्यादा सोचता है ना, थॉट्स तो हमारे ही मन में आते हैं, ड्रीम्स तो हमें ही ज्यादा देखना होता है। तो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन सब ह्यूमन एलिमेंट्स है, हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बनाते हैं। हमें अगर हट बनाना है हम हट बनाएंगे, हमें अगर छोटा सा घर बनाना है हम, तो वी आर स्पेशल, ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेशल। व्हाई स्पेशल? बिकॉज वी हैव अ गुड माइंड। लेकिन आजकल हम इसका यूज ही नहीं करते हैं, हमने इसको जंग चढ़ा के रख दिया है ना। मैंने देखा अभी जितने भी नए बच्चे हैं ना, कुछ अगर 2-4 बच्चे छोड़ दिए तो काफी एक्टिव है, बट कुछ तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। और आप लोगों को भी मैंने कितनी बार बोला है कि भाई प्रोजेक्ट SIP बनाओ, या फिर आपका क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाओ प्रोजेक्ट का। देन मैंने आपको ये भी कहा कि मुझे SIP का PPT चाहिए। नहीं, आपने तो अपने यहाँ पे क्या लगा के रखा है, राइट? मतलब आप स्पेशल नहीं हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू समथिंग स्पेशल इनोवेटिव, राइट? और हमें क्या कहा गया है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। सो वैल्यू योरसेल्फ गाइस, राइट? इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, हाउ यू प्रूव कि यस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? सो anyway, so specialization of human elements is like that कि जो भी हम सोचते हैं उसे हम कहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आज रोड, पहले रोड का जो कंस्ट्रक्शन था कुछ नहीं था, गांव में रोड वगैरह नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो काफी ग्रो कर रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उससे हमें ही तकलीफ नहीं हो रही है ना। सो दैट इज आर मैन मेड, हमारा ही दिया हुआ आइडिया है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, नए नए एलिमेंट्स लगा के, रिसोर्सेस लगा के। दैट इज सो स्पेशल। different type, functional, product line, geographical location, production process, type of customers, subsidiary, organization, time, vertical और horizontal anything, कितनी सारी ideas, कितने सारे innovations है ना। so ये सब हमने डिसाइड, लेकिन हमें उसे टाइम पे कंप्लीट करना है। ये सारी चीजों से हम इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। सो हाउ टू टाइप प्रोजेक्ट टू द पेरेंट फर्म, है ना। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो एक प्रोजेक्ट का काम आपने कर लिया, सो यू हैव एन आइडिया हाउ टू डू नेक्स्ट, हाउ टू डू नेक्स्ट। So how to organize the project itself? You have an idea, आपको पता होगा कि जो सिविल इंजीनियर होता है ना, जिसे कंस्ट्रक्शन अच्छे से आता है, तो जब वो सीख रहा होता है तो वो दूसरों के यहाँ काम करना है, क्योंकि उसे सीखना होता है कि कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे डेकोरेट, कैसे इंटीरियर करता है। इफ ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दैट फील्ड, तो वो खुद का घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। क्यों बना सकता है? Because he have a good idea. And why he have a good idea? Because he did practice. तब जाके वो अपना खुद का घर बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, बना सकता है ना। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के बारे में है, आप जितनी प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करोगे, जितने 10, 15, 20, तो ऑब्वियसली एक नया भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो यू हैव एन आइडिया हाउ टू फुलफिल इट, हाउ टू कंप्लीट इट, what resources you need to complete it, what elements, what subsidiaries, what kind of things you require to complete that project, you have it. Yes, got it? So that is the organization, that is the organize, event organize, project organize. अगर कोई if you find some kind of lack in that particular project, so the error, और उसमें पता होना चाहिए कि क्या इनकम्प्लीट है। अगर आपको पता है तो वो ध्यान में आता है आपके। नाउ नेक्स्ट, सो प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका हम नाम देते हैं, है ना, कि ये प्रोजेक्ट है, जैसे वाटर प्रोजेक्ट है, रोड का होम प्रोजेक्ट है ना, असाइनमेंट आपका प्रोजेक्ट है, कॉलेज में कुछ इवेंट है तो आपका प्रोजेक्ट है। तो जहाँ पे भी आप जाओगे एनी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहां पे उस टास्क को हम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि उसमें ड्यूरेशन होगा 8 वीक का,
1 डे का, ठीक है, 15 days का, ईयर का, दैट काइंड। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है अंडर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कल हमने प्रोजेक्ट केस भी देखा था कि किस तरह से प्रोजेक्ट केस में काम किया जाता है, किस तरह से उसका रिपोर्ट बनाया जाता है एक प्रोजेक्ट का, है ना, क्या क्या उसमें लेना है, कैसे टेबल्स बनाने हैं, कैसे इंडेक्स लगाना है, ऑल काइंड वी हैव सीन यस्टरडे द प्रोजेक्ट केस। सो द मान लीजिए कि एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है और आप अंडर वाइस प्रेसिडेंट के काम कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लाइन अंडर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का है। प्रोजेक्ट असाइन टू फंक्शनल यूनिट that has a most interested functional unit mean आपको बेसिक सीखने को मिलेगा व्हाट इज द फंक्शनल, क्या उसमें होने वाला है, कैसा होने वाला है ना, एक्शन क्या होने वाली है, वर्क कैसा होने वाला है एंड ऑल। गॉट इट? नेक्स्ट, सो फर्स्ट राइट, ये देखिए आइडिया देखिए कैसे आती है। यहाँ पे आपको एक ओरली बताया गया कि द प्रोजेक्ट इज लाइक दैट अंडर द वाइस प्रेसिडेंट, आपको दे दिया। तो दूसरे ही टाइम में आपके माइंड में क्या आना चाहिए, द डायग्राम। प्रोजेक्ट किसका है, प्रेसिडेंट का, क्या क्या चाहिए, कैसा कैसा बनाना है, लेट यू सी। द प्रेसिडेंट का प्रोजेक्ट है, प्रेसिडेंट के अंडर कौन कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। क्योंकि एक तो इंसान बना नहीं सकता, यू नीड अ मैन पावर पर्टिकुलर दैट एंड यू नीड एक्सपर्ट पर्सन who have and good experience about that project or past 10 years 15 years experience, right? So अभी वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के अंडर भी पीपल्स हो गए काम करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के भी अंडर पीपल हो गए वर्किंग करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग के भी एंड इंजीनियरिंग के भी, ऑल पीपल आर गैदर, they assign the work and start their project. Got it? So न्यू लेआउट, रोबोट लाइन, व्हाटएवर, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग, पूरा फोटो आपने देखा होगा जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वो लोग पहले फोटोज लेते हैं, फिर लाइन को चेक करते हैं एकदम परफेक्ट है कि नहीं, थोड़ी भी आड़ी टेढ़ी नहीं तो रोड ऐसे ऐसे बनेंगे ना, एकदम कंप्लीट है ना, एकदम स्ट्रेट आने चाहिए। सो प्रोजेक्ट न्यू मॉडल जो होता है पहले तो उसका मॉडल भी बना लेते हैं, है ना, डिजाइन ऑन दैट बेसिस पे क्या होता है उसका वर्क होता है। गॉट इट? एम ऑडिएबल? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? मेजर एडवांटेजेस, व्हाट इट इज? सो फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ स्टाफ। जितना ज्यादा स्टाफ होगा, जितना ज्यादा मैन पावर होगा, उतना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिनिश्ड होगा, है ना। सो मोस्ट फ्लेक्सिबल एफिशिएंट पीपल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द प्रोजेक्ट, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। द मेजर एडवांटेज इज मैक्सिमम, जितना ज्यादा स्टाफ होगा उतना अच्छा काम, टीम वर्क में भी जितने ज्यादा टीम मेंबर्स हो गए उतना काम करने में मजा आता है ना। So that is the maximum flexibility in the use of staff, right? Now individual expert can be utilized many different projects. You required जैसे आप अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो someone like the director, अंडर सेक्रेटरी हो गए या फिर मैनेजर्स हो गए, HODs होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, जो काफी सालों से उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें काफी एक्सपीरियंस है ना, उनको सारी चीजें पता है कि कब क्या होने वाला है और कैसे उसे हैंडल करना है। इफ यू आर अ न्यू ट्रेनर, सो दे ट्रेन यू। गॉट इट? सो इंडिविजुअल एक्सपर्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। वो आपको तरह तरह के प्रोजेक्ट बताएंगे, बोलेंगे कि आप पुराने प्रोजेक्ट देखिए उसमें क्या तकलीफ है या फिर क्या मीन्स मेजर थिंग्स है हाईलाइट की है, राइट? सो दैट इज इंडिविजुअल एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, है ना। हम लोग एक्सपर्ट से ज्यादा विश्वास करते हैं, एक्सपर्ट इज ज्यादा हम लोग को परफेक्ट लगता है किसी भी चीज के लिए। सो स्पेशलिस्ट इन द डिवीजन कैन बी ग्रुप to share knowledge and experience. Of
कोर्स जिनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, सो वो मतलब परफेक्ट होते हैं वर्क के लिए, और वो स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, सो दे नो अबाउट इट कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनको क्रिटिक्स पता होते हैं कि किस वे से हमें ये प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैंडल 100 मोर देन प्रोजेक्ट। गॉट इट? सो स्पेशलिस्ट इन द डिवीजन, उस पर्टिकुलर डिवीजन का स्पेशलिस्ट अगर हो तो वर्क इज गोइंग गुड। एंड एक्सपीरियंस, अभी आप सीख रहे हो, है ना, यही आपको 5-10 साल हो जाएंगे, आपके भी अंडर जब ट्रेनर्स आएंगे वर्क करने के लिए, तब आप उनको भी ट्रेन करोगे और आपको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया था दैट टाइम आई डिड दैट काइंड ऑफ मिस्टेक, सो यू डोंट डू इट। ऐसा आप सामने वाले को बोलेंगे। So that is the specialist in the division can be grouped to share knowledge and experience. That is most important. Now functional division serves as a base of technological continuity. Technical things is most important. अगर technical thing में problem है, technology use नहीं की जा रही है, तो project success नहीं होगा। Technical thing is most important. जैसे इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो तो आपको स्क्वायर टू स्क्वायर, यूनिट टू यूनिट, इतना तो इतना ही लेना है, इतना नहीं लेना है। अगर आपको बोला कि इतना ही डिग करना है तो उतना ही सेंटीमीटर का, उतना ही उसका जो पैरामीटर होगा एरिया का, उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। सो दैट इज द कॉल टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्निक जो यूज करना है उस चीज को बनाने के लिए वो उतना ही यूज करना है जितनी रेस्ट्रिक्शंस है। गॉट इट? सो दैट इज, एंड फंक्शनल डिवीजन एडवांसमेंट व्हाटएवर, ठीक है। सो जो भी फंक्शनली आप उस प्रोजेक्ट के लिए दोगे, करोगे व्हाटएवर, तो वो नॉर्मल कंटेंट में ही होनी चाहिए, ज्यादा ये उसमें प्रेशर देके नहीं करनी है। जैसे हम लोग आजकल तो सारी चीजें ऐसे ही बनती है, क्या बोलते हैं आप उसे, मेजरमेंट के हिसाब से, है ना, तो उतने ही मेजरमेंट में उतना ही लेके बनाना होता है। सो दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? नेक्स्ट, what is the disadvantage? So the client is not the focus of activity and concern. ठीक है, जो क्लाइंट होता है, जो भी वो लेगा या देगा, सो वो इतना फोकस नहीं करता है। कुछ कुछ होते हैं, एवरीवन नॉट, सो इज नॉट फोकस ऑन एक्टिविटी एंड कंसर्न। उसे क्वालिटी चाहिए, उसने जो बोला है वो टाइम पीरियड में उसे कंप्लीशन चाहिए होता है। गॉट इट? सो दैट इज द client is not focus activity and concern, they only focus quality and time पे हुआ कि नहीं, right? So they tend to be oriented towards functional activities, but अभी हम लोग क्या करते हैं, functional activities पे ज्यादा देते, तो functional activities भी important है। without functional activities, without action, we can't complete any kind of project, but you need to work hard to finish on time. The timeline is most important. So no individual is given a full responsibility for the project. Individual is why ना, ये भी disadvantages है उसका, कि हम लोग इंडिविजुअली इतना नहीं देखते। जैसे कोई भी चीज हमें पसंद आ गई तो हम उसके बारे में नहीं सोचते ये कौन से कंपनी में बना होगा, कब बना होगा, इसका ब्रांड क्या है, कितने दिन चलेगा, हम लोग आजकल नहीं सोचते। हाँ 20 रुपीज का है कि हम लोग इजीली, हाँ ठीक है, हमारे लिए इजीली होता है। तो यही है कि नो इंडिविजुअल इज गिवन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इंडिविजुअली कोई नहीं, क्योंकि क्या सोचते हैं, कंपनी का प्रोजेक्ट है, हाँ हमको सैलरी मिल रही है, हम लोग करेंगे, फिनिश होगा, दैट इज गॉट इट। बट अगर वो अच्छा हुआ है ना, तो उसके उसके वो प्रोजेक्ट में आपका नाम रहता है कि हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व ऑफ दैट प्रोजेक्ट, है ना। सो दैट इज, बट the disadvantage is like that कि no one is responsible for that project. So slow response to client needs. कभी कभी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टाइम लगता है, स्लो रिस्पॉन्स मिलता है, स्लो फीडबैक आता है, डिपेंड्स। सो टेंडेंसी टू सब ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट, यस, टेंडेंसी डिपेंड करता है कि वो डिपेंड करता है कौन सा इंडिविजुअल कर रहे हो,
या फिर गवर्नमेंट का कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट का कर रहे हो, सो डिपेंड। जैसे अभी ये कोविड की वजह से सारे कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए गए थे, स्टॉप कर दिए गए थे, तो लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट कि अब हो गया 5 साल तो कुछ नहीं होगा, बट नाउ अगेन रिस्टार्ट एवरीथिंग, सब क्या हो गया है ऑटोमेटिकली एज इट इज नॉर्मल, और सब चालू हो गया है ना। सो दैट इज मीन्स प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग। सो मोटिवेट इज वीक, टीम को ऑलवेज मोटिवेट करो, कंप्लीट करो, जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, बनाओ प्रोजेक्ट, बनाओ पीपीटीज बनाइए, एसआईपी बनाइए, बट नो वन, कोई नहीं करता है। हाँ, सिर्फ 2-4 बच्चे हैं जो अच्छे हैं, बाकी तो सुनते ही नहीं है, राइट? सही है कि नहीं? और ना ही आप अदर्स को मोटिवेट करते हो, आओ हम लोग कर रहे हैं, आओ, नहीं, सब अपना अपना देखते हैं। सही है ना? हमारा एमबीए हो गया, बाकियों का क्या करना है, हमारा एसआईपी हो गया, बाकियों का क्या करना है, राइट ना? चैतन्य, आर यू थिंकिंग लाइक दैट? यस मैम। जयश्री, जयश्री सोचती है कि नहीं, जयश्री का और प्रतीक्षा का हो जाए बस हो गया। नो मैम, ऐसा नहीं। यस, सबको होना चाहिए। ओके, सबका होना चाहिए, बट अभी देखते हैं ना 8 तारीख को कितने लोग आते हो आप लोग। अब वही तो है आपका एमबीए तभी कंप्लीट होगा जब आपका वाइवा अच्छा होगा, और आपका वाइवा तभी अच्छा होगा जब आप मेरे सामने पीपीटी प्रेजेंट करोगे। लेकिन नो वन हैज टू प्रिपेयर अबाउट इट, कोई बोलता ही नहीं है कि मैडम आज पढ़ाइए मत, आज हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन लीजिए, जस्ट लेट यू चेक कि हाउ वी प्रेजेंट। नहीं, जरूरत ही नहीं है। यू आर, मतलब आपको लगता है कि नहीं हमारा अच्छा ही होने वाला है, बट नहीं, बहुत टफ है इस बार। सो कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना फिर से एसआईपी, एक साल और हमारे साथ रहने को मिलेगा। ओके, सो इसलिए कहा गया है कि मोटिवेशन ऑफ टीम वीक, जो मोटिवेशन करते हैं हम टीम को, वो वीक हो सकता है, बट अगर जितना ज्यादा बूस्टिंग होगा, जितना ज्यादा आपको मोटिवेशनल थिंग्स, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, उतना आप अच्छा काम करेंगे, है ना? आपका लीडर अच्छा होगा, आपका गाइड अच्छा होगा, आपको अच्छा गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली यू फील लाइक दैट कि नहीं, हमें हमारा भी प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, है ना? आपको भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, तो ऐसा आप सोचते हैं। आप में से कौन लोग पोस्टर प्रेजेंट करने वाले हैं? कोई नहीं, क्या जरूरत है मैडम, ठीक है, मत करिए। So does not facilitate a holistic approach to the project। बहुत सारे लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं, अप्रोच ही नहीं करते हैं, हाँ कर लेंगे, बना लेंगे, देख लेंगे, that kind। So pure project organization, what it is exactly? Pure project organization, so project is separated from the rest of parent system, है ना? जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है? उनका सिस्टम भी अलग होता है, सेपरेट होता है, मतलब बड़े होते हैं इसलिए सेपरेट होते हैं, कॉमन नहीं होते, एकदम डिफरेंट होते हैं। सो दैट प्रोजेक्ट इज सेपरेट। एक जैसे वो फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे अभी नए नए राम मंदिर का प्रोजेक्ट ले लीजिए, अयोध्या का, है ना? वहां पे भी बहुत सारा, सो दैट काइंड ऑफ इट्स डिफरेंट, मतलब वो कब से चलता आ रहा था और अभी नया उसमें वर्क चल रहा है ना? और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडिया में, जैसे अपना क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है उससे अभी ये किया जा रहा है। अच्छा, यूक्रेन और रशिया के बारे में कुछ पता है क्या? वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है जयश्री यूक्रेन और रशिया में? क्या War. न्यूज है आज? वॉर चल रहा है। वो तो मुझे भी पता है यार, वॉर चल रहा है। I am asking just what is the today's news? How many people are died? What they are doing? Any kind of news? No. Chaitanya? Blank. Yes. Nilesh, Nitesh, Mayura, Akshada.
मयूरी, रोहन, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। यस, क्या लगता है कितने दिन चलेगा? एनी आइडिया? क्या करना है मैडम जनरल नॉलेज लेके, राइट? एनी आइडिया? आप लोगों को तो पता होना चाहिए सारी चीजें, पढ़ोगे रीड करोगे तो पता चलेगी। एनीवे, सो दैट इज द प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और becomes a self contained unit. आप उसमें कितना सेल्फ एफर्ट डालते हो, कितना डेडिकेशन, कितना इनपुट आप खुद का दे रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो आप अपने आप को कितना मोटिवेट कर रहे हो उस चीज को करने के लिए, एंड फाइनली यू फिनिश दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, the advantages. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज अ फुल लाइन अथॉरिटी ओवर द प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट होने तक वो कंप्लीट करना होता है, फुल लाइन अथॉरिटी। जब तक वो स्टार्टिंग जैसे हाथ में आया, जब तक वो बनता नहीं तब तक फुल अथॉरिटी। गॉट इट? नाउ ऑल प्रोजेक्ट वर्कफोर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू होल प्रोजेक्ट। अगर वो ब्रिज गिर जाता है तो यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। गॉट इट? सो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर शॉर्टेड, मेंटेन permanent group of expert, high level of commitment, ability to make a swift decision, unity of command, simple and flexible structure, support holistic approach to the project. So that is most important. So now line of communication are shorter means miscommunication nahi hona chahiye. You need to report daily basis whatever the task you assign and you fulfill. दैट इज क्लियर। आज आपको ये काम दिया था, आपने कंप्लीट किया, आपने जाके बता दिया, योर कम्युनिकेशन इज गुड। आप बोल ही नहीं रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ गया, आप बोल ही नहीं रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, काम कर रहे हो, आ रहे हो जा, नो, कम्युनिकेशन गैप नहीं चाहिए कोई भी वर्क में, राइट? सो मेन इंपॉर्टेंट लाइन कम्युनिकेशन आर नो शॉर्टर, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देन मेंटेन परमानेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट उनमें काम कर रहे हैं उनको मेंटेन करके चलना है, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो भी है, जो भी उनको चीजें लग रही है, वॉट एवर द रिसोर्सेज दे रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यू नीड टू सपोर्ट देम। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो, यस सर आई विल फिनिश ऑन सैटरडे, आई विल फिनिश ऑन दिस डे, आई विल सबमिट tomorrow 12 p.m. so you should submit tomorrow 12 p.m. 11 to 11. So that is the commitment. Whatever the commitment, whatever the commit you in your manager, your boss, HODs, everywhere, so you should fulfill, right? Now ability to make swift decisions. Okay, you have an ability to make a decision, to complete decision, to fulfill decision, to finish the task. Okay, so that is most important. Now unity of command, ग्रुप होना चाहिए ना, ग्रुप में क्या होती है, यूनिटी होती है, क्योंकि यू आर वर्क इन ग्रुप, यू आर वर्क इन टीम। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूनिटी के साथ जो हम काम करते हैं वो अच्छा सक्सेस होता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, सभी लोग जरूरी नहीं होता है कि सभी लोग जाके डायरेक्टर से या एचओडी से बात करेंगे, है ना? कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता तो वो कलीग से बात करके बताते कि नहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यस इट्स अ शॉर्ट सिंपल प्रॉब्लम, तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर बिग प्रॉब्लम है तो यू नीड टू डिस्कस विद देयर एचओडीज एंड पीपल। नाउ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एवरी टाइम हमेशा सिंपल सोचिए और सिंपल तरीके से ही काम करना पसंद करिए। तो जितना सिंपल होगा, जितना सिंपल थॉट्स होगा, उतना सिंपल वर्क होगा, उतना सिंपल आपका स्ट्रक्चर होगा टू फुलफिल द प्रोजेक्ट। नाउ सपोर्ट होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट, एकदम सिंपल, कितना भी टफ वर्क हो, सो यू जस्ट थॉट कि ये बहुत इजी है, हो जाएगा, है ना? सो दैट काइंड ऑफ बिहेवियर
व्हेन यू गेट अ प्रोजेक्ट, मतलब उस टाइम आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए कि नहीं, सिंपल हो जाएगा, राइट? सो दैट इज अ holistic approach, means simple systematic approach. Okay, so that is the good advantage to fulfill, to complete, to finish your project, है ना? जैसे SIP मैडम ने बोला, हाँ हो जाएगा, आपने कर दिया, बना दिया, हो गया, yes, good. So you feel very good because I check your communication skill, I check your body language, I check your eye contact, I check how you answer my questions. Got it? तो आपका फियर चला जाएगा जब आपका एक्सटर्नल के साथ वाइवा होगा. सो यू फील लाइक दैट कॉन्फिडेंट, पूछो जो भी पूछना है, बिकॉज आई एम प्रिपेयर. गॉट इट? नेक्स्ट, आर यू गेटिंग बोर? यस, बोर हो रहा है आपको? No, ma'am. No. Thank you. So the project organization chart are here. So president, vice president project A, vice president project B and vice president project C. अभी ये जो प्रेसिडेंट है उसके पास 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है, A B C, तीनों के प्रेसिडेंट है. अब बेचारा ये किस किस का देखेगा, बट इसको तो देखना है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, तीनों को हैंडल करना है. अब ये तीनों के अंडर पीपल का, इसके अंडर 100 पीपल है, इसके 100 इसको, अब ये अकेला 300 को हैंडल कर रहा है. हाउ इज पॉसिबल? बट पॉसिबल. टेक इट इजी, वो सिंपल. ये एडवांटेजेस पढ़ लिए उसने देखा कि नहीं, टेक इट इजी, कूल रहना है और अच्छे से प्रोजेक्ट करना है. जितना आप कूल रहोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना अच्छा दिन आपका जाएगा, उतना अच्छा काम आप करोगे. गॉट इट? सो ऐसे टीम्स होती है, टीम के साथ काम करना होता है, टीम को बना के रखना होता है. अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डबल वर्क होना, रिपीटेशन ऑफ वर्क होना, है ना? कभी कभी होता है किसी को नहीं समझ में आता है, किसी को एक चीज 10 बार समझानी पड़ती है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है. देन स्टॉक पाइल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल, सब होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसे टाइम लगता है ना? सो दैट प्रॉब्लम इज कम्स स्टॉक पाइल इक्विपमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट जस्ट इन केस का एक एग्जांपल है ना, कि कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है या फिर कुछ मशीन का पार्ट हो गया खराब, जब तक वो आता नहीं तब तक काम नहीं होगा. सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज हैपेंड. लैक ऑफ एक्सपर्टाइज इन हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जैसे अगर बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें जिस एक्सपर्ट की जरूरत है वो नहीं है, तो उसकी भी वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है या प्रोजेक्ट टाइम पे फुलफिल नहीं होता है. फोस्टर इनकंसिस्टेंसी एंड कटिंग कॉर्नर, है ना? जैसे ये रिगार्डिंग उस प्रोजेक्ट का है तो एक एक जो कटिंग होता है ना, जैसे आपने देखा होगा वॉल का, या तो उसमें भी टाइम लगता है, इनकंसिस्टेंसी होती है. कॉर्नर एकदम जैसे ये सिंपल है ना, आप इसका स्क्वायर बता सकते हैं इतना, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा है तो इसको अगर मुझे ये लेवल पे लाना है ना, ये लेवल पे अगर मुझे सेम लेवल पे इसको लाना है, अगर ये ऐसा है तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा. उसके लिए मुझे या तो इससे काटना होगा या फिर मुझे इसी में कुछ ये करके इसको यहाँ तक पहुंचाना होगा, है ना? सो दैट इज इनकंसिस्टेंसी. उससे तो टाइम लगेगा, एक दिन में तो बनेगा नहीं. Now project takes on a life of its own. देखिए I like this कि project takes on a life of its own. काम करते करते लाइफ का पता नहीं चलता है. So life is an project. हम रोज कुछ ना कुछ करते ही है, तो हमें प्रैक्टिस हो गई है और मॉर्निंग में उठने की, अपने डेली रूटीन निपटा के बाहर निकलने की, बाहर जाके हमारा खुद का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें इन्वॉल्व होके करने की. हम दिन में कितने सारे प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा इंडिविजुअल करते हैं और बाकी के जितने भी काम होते हैं, 10 काम होते हैं, वो भी एज अ प्रोजेक्ट ही है. सो इट्स अ ओन. सो वरी अबाउट लाइफ आफ्टर प्रोजेक्ट एंड्स. सीरियसली, कि प्रोजेक्ट एंड होने के बाद हमें चिंता होती है, यार अब तो काम ही खत्म हो गया, काम चाहिए. सो वरी अबाउट लाइफ आफ्टर प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें चिंता होने लगती है. हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या करें. अभी आप लोग बिजी, आप बोलते मैडम टाइम ही नहीं है, अरे पीपीटी बनाओ टाइम ही नहीं है, एसआईपी बनाओ टाइम नहीं है, पोस्टर बनाओ, बिकॉज यू आर बिजी.
है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इस पे बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो आप, आपको ये सब पीपीटी वगैरह तो ऐसे ही लगता है वो क्या तो अभी बिजी है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगेगा यार अब जाके मैडम को पीपीटी बना के दिखाते हैं। Am I right? Now, so the what is a matrix organization? So combination of matrix means combination of functional and pure project organization. How we prepare it, how we think it, what kind of idea comes, pure ideas, and no like सिर्फ आइडिया ही माइंड में नहीं आना है, तो यू जस्ट वर्क, आपको उसको वर्क करना है। सो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो सिंगल नहीं होना चाहिए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, एक प्रेसिडेंट है लेकिन उसके अंडर 3 प्रोजेक्ट है, तीनों वाइस प्रेसिडेंट है ABC, और उनके अंडर भी ये है, लेकिन तीनों को वो साथ में लेके चल रहा है। यस, ठीक है। सो दैट इज द इंडिविजुअल सेपरेटेड है ना, सबका अलग अलग है बट स्ट्रेट है, सबका रिपोर्टिंग हो रहा है। सो इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव फंक्शंस, डिविजन्स एंड आर असाइंड टू द प्रोजेक्ट फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है। सो अभी एक प्रेसिडेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, मार्केटिंग टीम काम कर रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, प्रोग्राम। सो वन पर्सन इज हैंडलिंग ऑल थिंग्स, मीन्स ऑल पीपल आर हियर, ओके। he reporting him, he reporting president, he also reported him, he also reported him, ठीक है। ये लोग भी इन लोग को सबको रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, वर्क जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशली, सो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, गोइंग ऑन हो रहा है, मतलब चल रहा है। नाउ क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स, है ना, जो टीम मेंबर्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, सो वो उनका कैसा वर्क चल रहा होता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम में वो क्रॉस करते हैं, ये उसका हो गया क्या, चलो अब इनका काम हो गया तो ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सो जो साइकिल होती है ना, मैंने दिखाया था आपको, वो कैसे कंटिन्यूअसली, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा दूसरी साइकिल नहीं होगी, ये कंप्लीट नहीं करेगा तीसरी साइकिल नहीं होगी, तो इट्स गोइंग ऑन साइकिल, राइट। सो ड्रॉ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज of relevant functions, different kind of functions comes, एक हो गया। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं, न्यू मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं टू फुलफिल द प्रोजेक्ट के लिए, वट एवर वी रिक्वायर्ड वी हैव टू डू इट। सो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना मतलब टाइम सेव करना और क्वालिटी ऑफ वर्क करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हाई टेक्नोलॉजी एरियाज इंटीग्रेट फंक्शनल स्पेशलिटीज। क्या है फंक्शनल स्पेशलिटी, मतलब क्या स्पेशलिटी है वो वर्क में, क्या क्वालिटी है उस वर्क में, दैट इज द कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है ना। ब्रांड, अगर हम ब्रांड की बात, तो हम लोग सोचते हैं यार जैसे आप लोकल मार्केट में भी आपको सेम दिखेगी, है ना वो चीज, और ब्रांड में भी सेम, लेकिन जब आप दोनों को हाथ में लेंगे तो आपको एक पे क्वालिटी दिखेगी, एक में नहीं दिखेगी, है ना। एक जो क्वालिटी वाला है, ब्रांड है, उसको आपको बार बार परचेस करने की जरूरत, बिकॉज वो ब्रांड है, वो लाइफ टाइम चलेगा। और जो लोकल से लिया हुआ है वो 1 या 2 राइट। सो आप यूज करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यस दैट इज ट्रू, ठीक है। सो आइटरेशन इन अडॉप्टिंग ओवर द वॉल अप्रोच, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या, किस अप्रोच को आप हैंडल करते हैं, किसे आप ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। प्रोजेक्ट में भी वैसा ही है कि आप किस काइंड का मटेरियल यूज कर रहे हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप राइटिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे जो लोग लॉयर्स होते हैं, सीएस होते हैं, सो वो अपना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, अच्छा राइटिंग, ऐसा अच्छा फीडबैक। सो lot of people trust them and they feel like that, you know, that is a person who may feel very better, who has a good quality of work. Got it? So iteration is most important. Then system approach integrity of product design, है ना, डिजाइन कैसा है, बहुत सारी चीजें हम
अभी तो यूट्यूब पे आप देखते होंगे, गूगल पे आप देखते हो, कुछ भी डालो तो कितना अच्छा मतलब इमेजेस ऑल एंड थिंग्स वी हैव सीन, तो हमें भी एकदम दिमाग अमेजिंग, वाओ, दैट काइंड ऑफ वर्ड कम्स, है ना, आउट ऑफ आवर माउथ. सो दैट इज the part, and the close coordination and communication among all parties. मतलब जितने भी आपके क्लाइंट्स है मार्केट में, या जितने जिन लोगों से भी आप रोज बात करते हो, तो उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए सबके साथ. सो उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं यार द पर्सन इज वेरी रूट, कैसे बात करूं, या फिर वैसा नहीं होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन गुड होना चाहिए, क्वालिटी गुड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल गुड होना चाहिए. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, what is the advantages? The project is the point of emphasis. What is the emphasis? Means आपको टाइमलाइन दिया है, उसी टाइम को पॉइंट, उस पॉइंट पे ही आपको वो कंप्लीट करके जाना है. ताजमहल का था प्रोजेक्ट था, उसने बना दिया, आज भी कहाँ कहाँ से लोग जाके उसे देख के आते हैं, है ना. सो बना, उसको रिपेयर कर करके अभी उसको ये करके रखा है, बट प्रोजेक्ट था. मैंने तो अभी तक नहीं देखा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन, बट प्रोजेक्ट था. आज भी उसका जो वर्क है ये है. जैसे ही आप जैन मंदिर पे अगर देखते हैं तो वहां पे भी ना जो वर्क है वो छोड़िए. मैंने लास्ट टाइम कहा स्वामी नारायण मंदिर गई थी, ये पुणे का ही शायद वड़गांव में ही है. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, उस पे जो डिजाइन किया हुआ है इतना मतलब बारीक. सो दैट इज द प्रोजेक्ट. कितनी मेहनत से किया होगा, मतलब जो कारागिर लोग है जो, सो नॉट अ जोक, इतना जो क्वालिटी होती है ना, नो एक लाइन भी ऐसी आड़ी नहीं है, एकदम स्ट्रेट. जो भी उन्होंने वहां पे इमेजेस बनाए हैं ना, वो वॉल पे, वो पिलर्स पे, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी परफेक्ट है. तो ऐसा लगता है हाउ इट इज पॉसिबल. मुझे तो ड्राइंग अच्छा, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट जब भी मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ तो आज तक मुझे एकदम ऐसा क्लियर सर्कल भी बनाना नहीं आया है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. लाइन तो अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी आती है, बट सर्कल आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि अच्छा बनाओ, बट परफेक्ट नहीं आता है. लेकिन वो लोग इतना प्योर वर्क करते हैं, है ना. राजस्थान के जो लोग थे वो कितना प्योर, इतना पता नहीं उनके हाथ में से जादू होता है, ऐसे फट फट. जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी फटाफट सारी चीजें. सो दैट इज, तो उसे कहते हैं परफेक्शन. उसके नॉट ओनली परफेक्शन बट द डेडिकेशन, यहाँ से करते हैं वो लोग, है ना. तो डेफिनेटली इट विल बेटर, मतलब अच्छा होता है. सो द प्रोजेक्ट इज द पॉइंट ऑफ एम्फासिस, मतलब उस पॉइंट को उसे कंप्लीट करना होता है. रीजनेबल एक्सेस टूल्स ऑफ टेक्निकल टैलेंट्स सबके पास नहीं होता है, गिफ्टेड होता है, बट अगर हमने कोशिश की तो हमें भी आता है. सो लेस एंजाइटी अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन. अगर आपको गिल्ट फील होता है कि नहीं यार मैंने ये गलत किया, सो यस, बट माइंड में रखिए कि ये इस बार किया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा. तो होता ही है, क्योंकि मिस्टेक से ही हम लोग काफी सारी चीजें सीखते हैं, राइट. सो लेस एंजाइटी अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ गलत दिख रहा है, अब उससे तो आप तोड़ के बना नहीं सकते ना बहुत सारी चीजों को. हाँ, अगर राइटिंग में है तो आप ठीक है दोबारा लिख सकते हैं, बट सारे प्रोजेक्ट वैसे नहीं होते हैं. सो रैपिड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट नीड. अगर वो अच्छा बन जाता है तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स. जैसे आपने अगर कुछ पिक्चर्स सेल्फी निकाल के आपने स्टेटस में लगाई तो लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स आर वाओ गुड ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ कमेंट्स वो मिलती है आपको, है ना. क्योंकि आप अच्छे दिख रहे होते हो, आपको वो कलर अच्छा लगता है, या आपका जो लुक है वो लोगों को पसंद आता है, डिफरेंट. सो दैट इज द रिस्पॉन्सेस, रैपिड, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आने चालू होते हैं. सो एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द पेरेंट फर्म्स. वैसे ही प्रोजेक्ट का ही है एक हाथ, अगर कोई अच्छा, जैसे अभी पुणे में मेट्रो चालू हो जाएगा, आप डिपेंड ऑन कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितना पीपल जो है, कितने पुणे के पीपल है वो रिस्पॉन्स करते हैं, उस पर डिपेंड है. सो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है अभी चल रहा. सो एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द पेरेंट फर्म्स, बाकी की फर्म्स कितना सपोर्ट करती है वो भी इम्पोर्टेंट है. सो बेटर बैलेंस ऑफ कंपनी रिसोर्सेज इज मल्टीपल प्रोजेक्ट.
अगर एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ मल्टीपल प्रोजेक्ट एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड यू वर्कड ऑन same company 50 to 20 years again and you will make an expert of that field. Yes or no? And flexible in control. फिर slowly if you आपको एक्सपीरियंस आने के बाद आप क्या हो जाते हो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो एंड यू विल फुलफिल ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमैटिकली, राइट? व्हाट इज द इसके भी डिसएडवांटेजेस है. सो डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर. जो पावर होता है वो डेलिकेट होता है. यू हैव नो राइट टू यूज योर पावर. वॉट एवर द वर्क आपको उसी को कंप्लीट करना है. मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट जो मूवमेंट मतलब उतने टाइम में उसे बनाना है, दैट इज द लिमिटेशंस. प्रोजेक्ट रेसिस्ट डेथ है ना, वो अगर आपका कुछ हो जाता है तो वो रेसिस्ट हो जाता है. सो द कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है. जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो आपको छुट्टी नहीं ले सकते. इमरजेंसी बहुत ज्यादा रही तो ही आपको एक आध दिन की मिल सकती है, आप ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते. सो लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू नीड टू फुलफिल ऑन टाइम. वहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, और जहाँ रेस्ट्रिक्शंस होती है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते. हम प्रायोरिटी वर्क को देते हैं, राइट? सो वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. आपको वायलेट्स करती है यूनिटी ऑफ कमांड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टू फुलफिल द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट. Now, divisionalization, breaking down the large organization into smaller, more flexible units. तो जितना flexible units के साथ काम होता है तो डिपेंड करता है कि डिविजनल मतलब कितनी सारी डिविजन्स है, कितने सारे डिविजन्स के साथ आप काम कर रहे हो. जैसे बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट बन, जैसे रोड का ही काम ले लीजिए, कहाँ नहीं वो फिट हो रहा है. जैसे मशीन्स है, यहाँ से नहीं बाहर से आ रही है, कंक्रीट आ रहा है, उसका सीमेंट आ रहा है, जो भी उसको सैंड वैंड वो लग रही है कहाँ से आके. और इतने सारे लेबर्स भी एक जगह से नहीं, कहीं यहाँ से वहां से, तो ऑल ओवर से आ. तो दैट इज जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना वो अच्छा भी बनेगा ना. जितने लोग काम करेंगे उतना अच्छा बनेगा, उतनी जल्दी वो होगा, टाइम से होगा. एंड now spine of the large project as subsidiaries or independent operations. क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस में वर्क करना होता है, इंडिपेंडेंटली वर्क को फुलफिल करना होता है. सो अलाउ फॉर्मेशन ऑफ वेंचर्स टीम. व्हाट? अलाउ फॉर्मेशन ऑफ वेंचर टीम के साथ वर्क इंपॉर्टेंट है. हाइब्रिड लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना है. एक्सट्रीमली सॉरी. नाउ हाइब्रिड लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी. डिसिमिलर ग्रुपिंग encourages overlap and duplicate frictions. So duplications नहीं होना चाहिए, mistakes नहीं होनी चाहिए. Then you have to fulfill on time, no overlapping, right? That is most important to finish the project. Overlapping is not important. Then precedent again वही है कि आपके the diagram is like that कि how many people are working. That is the project diagram. Lot of people are there, group are there, team members are there to work the project, to conduct the organizations and team. So set up like functional organizations. Okay, functional organization के साथ में work करना है. Set up like functional organization adds a staff office to administrator project. Use small short run projects. Depend ki what kind of projects you have and you fulfill it. Next. So the staff organizations like that, presidents, project S, okay, finance, manufacturing, engineering team are there, finance peoples are there. They have a 15 or n number of people working in under of finance, n number of people working in manufacturing team, n number of people is working in engineering team. So lots of.
choosing an organizational form. So functional form major focus on the in-depth technology require large capital investment. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना प्रोजेक्ट में क्या होगा, उतना प्रोजेक्ट आपका अच्छे से बनेगा. डेप्थ से बनाओगे, डेप्थ के साथ बनेगा. वॉट एवर द रिक्वायरमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे उतना अच्छा वर्क भी आपका बनेगा. पीपल मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू फुलफिल project. Matrix organization require integration of inputs from several functional areas and involves a responsibly sophisticated technology, and several projects must share technical expertise. Right? Technical peoples are required to fulfill the project. Unity honi chahiye to finished work. Okay, so that is the project or team, how we required, what kind of work we are prepare, and how many people are work to fulfill the project, right? N number of projects are there, and on that particular project depend, it's a short term, long term. Okay, so and use to fulfill the project. Okay, so today we have stopped here. Anyone want to ask any questions regarding this? Yes, yes or no? किसी को कुछ पूछना है? Yes, you got it. Okay, so now we finished. Tomorrow you have a guest lecture at 11 AM. You attend it, and please attend SAP session because tomorrow's session is SD session, है ना? Sales and distribution sessions. It's a very vast, and the person is maybe Soumya Basu. He is a very expert in SD. Okay, he has 16 years experience. So so I request to all attend SAP sessions, and you just note down what are they talking. Okay, and if you have ask any question, please ask. Ma'am. Hello. So bye bye, take care. Good night to all of you. See you tomorrow.